Assalamu alaikum viewers, this is Zahid Mahmood from Investment Recorder. As the name of the channel is showing, this channel is related to capital markets. So capital market is all about the investing, how to invest in different markets and how, when and where to invest, which is actually a motto of this channel. So as we discussed in our previous slide, we will talk about the stock market structure. So here is the structure. First of all, we will see here is SECP. In other words, it is called SEC, Securities and Exchange Commission. And because I'm from Pakistan, so I have added it as Securities and Exchange Commission of Pakistan, which is apex regulator here in Pakistan for the capital markets. So under SECP, you can do any insurance business, you can do any non-banking financial companies, you can do you can manage mutual funds, you can manage any asset management company. Today our mostly we will talk about the brokers. So what brokers are doing, what brokers are having. So in this vlog specifically we will talk about the stock market, so we will talk about the stock market brokers as well. So first of all you see there is SECP. So SECP के अंडर जो है there are three different organizations. CDC which is a Central Depository Company. ये पाकिस्तान में जितने भी फिजिकल शेयर्स हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉनिकल शेयर्स हैं, ये उनके कस्टोडियन हैं. Then there is stock market, stock exchange, which do the exchange thing. We will discuss it later in this presentation. Then there is NCCPL, National Clearing Company of Pakistan Limited, which is doing the clearing things. Then there are brokers. Then institutional investors and individual investors, they are the parallel clients of brokers. So brokers are having two types of clients. So we will start it from this way. As individual, if you want to start investing in stock market, first of all you need a broker. So what broker will do? Broker will open your account, a very simple stock market brokerage account. You can start it from different investments. Mostly are having facility to get your account in 5,000 only. So आपने सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना है और आपका एक ब्रोकर अकाउंट ओपन हो जाएगा. उसके बाद आपका क्या काम है? उसके बाद ब्रोकर आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे देगा. ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से आप खुद भी ट्रेड कर सकते हैं, आप ब्रोकर के थ्रू भी स्टॉक मार्केट में डिफरेंट जो स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं. उसके बाद होता क्या है? लाइक आपने एक ऑर्डर पास किया ब्रोकर को, जी मेरे लिए फॉर एग्जांपल कोई ABC शेयर्स जो हैं वो 10 रुपए के हिसाब से 1,000 शेयर्स खरीदते हैं. तो ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर स्टॉक मार्केट में उसकी आपकी ट्रेड कर देगा. उसके बाद विद इन द सेम डे और वेरी नेक्स्ट डे CDC, बल्कि विद इन द सेम डे CDC वो शेयर आपके नाम पे कर देगा. उसके बाद CDC मैसेज दे देगा NCCPL को, ऑटोमेटेड मैसेज होगा कि जी इस स्पेसिफिक क्लाइंट के अकाउंट से जो है वो इतने पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाए. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओवरऑल एक्सचेंज बिजनेस. It will happen in samely in institutional investors. So if an institutional investor like mutual fund, insurance company or pension fund will go to buy a share, the same thing will happen. They will buy a share, they will pass an order to broker will proceed all other aspects. You don't know where is CDC, you don't know where is NCCPL. These all are the things to do by the brokers. So it's very simple for you as client to do the business. So if you are doing this business, you don't need too much work. You just place your orders to your broker know what to do in that. So ये है एक स्ट्रक्चर जो स्टॉक मार्केट का वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है. आपके लिए सिर्फ इतना है कि आप ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करें. आप चाहे तो ब्रोकर आपका CDC में आपका एक सब अकाउंट ओपन करेगा, लेकिन अगर आप चाहे तो ब्रोकर आपको एक डायरेक्ट अकाउंट देने का भी मजाज है. आप एक डायरेक्ट अकाउंट भी CDC में खोल सकते हैं ब्रोकर की इंफॉर्मेशन के बाहर. आप जो भी शेयर्स ब्रोकर से खरीदें
आप उनको डेली बेसिस पे शाम को सीडीसी में कन्वर्ट कर दें, अपने अकाउंट में कन्वर्ट कर दें, तो आपके दो अकाउंट हो जाएंगे। एक वो अकाउंट जो ब्रोकर के साथ आपका सब अकाउंट है, और एक वो अकाउंट जो सीडीसी में आपका डायरेक्ट अकाउंट है। सो these are the things happening on the structure. In continuation of previous slides, first of all we will talk about SECP, Securities and Exchange Commission of Pakistan. What they are doing, they have regulatory functions as well. Regulatory functions are consist of registration and licensing, supervision of prudential and regulatory laws, enforcement of civil and criminal laws. Market developments are including revamping of existing and framing of new legal framework, then implementation of corporate governance, corporate social responsibility, and anti-money laundering. So these were all the functions of SECP I have discussed in brief. If someone want to discuss them in detail, they can contact me through my email as well, which is given in the description. So the next is CDC, Central Depository Company, which is providing different services are given here: investor account services, trustee and custodial services, account statement verification, global terminal facility, CDC email facility, and training. So now the most interesting thing, stock market, stock exchange. So what stock exchange is doing here? In simple words, आप किसी भी market में जाते हैं तो what is happening there? There are sellers, there are buyers. So buyers के पास कुछ खरीदने की डिमांड्स हैं, sellers के पास कुछ बेचने के लिए है। बायर के पास पैसा है, वो क्या करता है, अपना पैसा पे करता है और अपनी जरूरत की चीज खरीद लेता है. So provide central convenient meeting places for sellers and buyers of securities. So this is a simple bazaar where you go and buy your required stocks. Next is increase the marketability and liquidity of securities. So because यहाँ पर एक place है, आप ऑनलाइन खरीदते हैं, बेचते हैं किसी ब्रोकर के थ्रू. अगर आपको वैसे जो पुराना तरीकाकार था उसको अगर हम देखें, जब पेपर्स होते थे या जब सर्टिफिकेट्स होते थे, उस वक्त तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता था. लोग बोरियों के अंदर अपने शेयर्स लेके आते थे और उस वक्त पैसे की भी वैल्यू ज्यादा थी, तो बोरियों में ही पैसा आता था और वो ट्रेड हो रही होती थी, विच वॉज नॉट वेरी सिक्योर और इतना एक्यूरेट भी नहीं था. लेकिन आजकल तो आपके फिंगर टिप के अंदर है, आप जो मर्जी खरीद सकते हैं, जो मर्जी बेच सकते हैं ऑन सम वेरिएबल प्राइसेस. उसके बाद है जी कंट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज. सो ये प्राइसेस की जो स्टेबिलिटी है, डिफरेंट सिक्योरिटीज हम शेयर्स को कहते हैं, तो सिक्योरिटीज की जो प्राइसेस की स्टेबिलिटी है उसको, उसके अंदर भी कंट्रीब्यूशन है इसका, क्योंकि बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के खरीद रहे हैं. सो अगर मैं इसको सिंपल वे में समझाना चाहूँ तो ऐसे ही है जैसे आप बाजार में चले जाते हैं तो एक बाजार में बहुत सारी जूतों की दुकानें हैं, बहुत सारी कपड़े की दुकानें हैं, बहुत सारी बर्तनों की दुकानें हैं, और उतने ही उधर बायर्स भी आते हैं. जिस दिन बायर्स कम आएंगे उस दिन क्या होगा कि मार्केट ठंडी होगी, लोग खरीदार कम होंगे. इसी तरह स्टॉक मार्केट में होता है कि जिस दिन बायर्स कम होते हैं ड्यू टू सम इश्यूज, यू कैन से लाइक आजकल जैसे कोविड-19 की कंडीशन में बाइंग बहुत कम हुई पिछले दिनों. अब आके तो मार्केट वैसे तो कुछ हफ्तों से ठीक हो गई है, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ उस वक्त हमने देखा कि 1500 पॉइंट्स और मार्केट ने डेली लो रॉक्स लगाए, 7.5%, 8%, 7.5%, 6%, इस तरह से मार्केट डेली माइनस होती थी. सुबह आते ही मार्केट 5% माइनस हो जाती थी, बाजार हेल्ट हो जाता था, फिर उसके बाद दोबारा कुछ टाइम के बाद मार्केट दोबारा ओपन होती थी, और जब ओपन होती थी तो उसमें जो है वो कभी कभार तो स्टेबल हो जाती थी, नहीं तो 1500 पॉइंट 1600 पॉइंट माइनस पे मार्केट बंद हो रही थी. इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज है, स्मूदन प्राइस मूवमेंट है. सो आप किसी भी प्राइस की मूवमेंट बड़ी स्मूथ है इसमें. हेल्प द इन्वेस्टर्स टू नो द वर्थ ऑफ देयर होल्डिंग्स. तो आप अपने जो है आपकी होल्डिंग्स की वर्थ आप देख सकते हैं, वो भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. हेल्प कैपिटल इंफॉर्मेशन है. सो नॉलेज और इंफॉर्मेशन के हवाले से इट्स अ वेरी मच कंप्रीहेंसिव सोर्स.
हेल्प कंपनीज एंड गवर्नमेंट टू रेज फंड्स. सो आप डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो फंड्स को भी रेज कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड आईपीओ. We will discuss about IPO in upcoming slides. Maybe next presentation I will try to make it about the IPO as well, because IPO is the major component to understand about the stock markets. Then there is provide forecasting services. So there are some technical forecasting, fundamental forecastings, from where you can get to know through data where, how to invest. Then promote the habit of saving and investment. So stock market is also promoting the habit of savings and investments in Pakistan as well. So it's a very good platform. It's a marvelous platform where you can work. NCCPL is also a very big player in this all game, because NCCPL के बगैर कोई transaction हो नहीं सकती stock market में. So what they are doing, first point is showing its importance, is clearing and settlement services. So NCCPL जितनी भी transactions होती हैं stock market के अंदर, उनकी clearing और settlement का काम कर रहा है. उसके अलावा risk management system को भी manage कर रहा है. ये हम later on discuss करेंगे how they are managing the risk in stock market. यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स प्रोवाइड कर रहा है, यूनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मार्जिनल ट्रेडिंग सिस्टम है. इट्स इन सिंपल वर्ड्स, यू कैन डू सम ट्रेड ऑन क्रेडिट एज वेल. मार्जिनल फाइनेंसिंग सिस्टम है, ये भी एक क्रेडिट सर्विस है इसकी तरफ से. सिक्योरिटीज लैंडिंग एंड बोरोइंग है, आपको सिक्योरिटीज को लैंड भी कर सकते हैं, इससे बोरो भी कर सकते हैं. उसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स को मैनेज करता है. ये जो आप जितने भी शेयर्स की खरीदो फरोख्त करते हैं, जब भी आप कोई शेयर बेचेंगे, कैपिटल गेन टैक्स जो भी आप उस पर गेन करेंगे उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज है, वो जो है एनसीसीपीएल काटता है. उसके बाद नेशनल कस्टोडियन सर्विसेज हैं कि जितना भी शेयर्स की कस्टडी है वो उसको भी ये मैनेज कर रहा है सीडीसी के साथ मिलके. उसके अलावा अकाउंट फैसिलिटीज़ हैं कि इसमें भी आप अकाउंट मैनेज कर सकते हैं. उसके अलावा मार्केट इंफॉर्मेशन है, नॉलेज बेस है, इन्वेस्टर एजुकेशन के हवाले से ये बहुत काम कर. उसके अलावा ये है कि ब्रोकर्स जो पाकिस्तान में हैं, इनका जो स्पेसिफिक ऑफिशियल नेम है वो है TREC होल्डर्स. तो TREC होल्डर का जो फुल फॉर्म बनता है वो है ट्रेडिंग राइट एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट. सो जो भी ब्रोकर सर्विसेज पाकिस्तान में प्रोवाइड करना चाहे उसको ये सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता है, और इसको मेनली तो SECP प्रोवाइड करता है. उसके अलावा ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कोरिलेटेडली इसके साथ अटैच होती हैं. सो एक TREC होल्डर आपको क्या क्या सर्विसेज दे सकता है, उनमें एक ब्रोकरेज एंड ट्रेडिंग ऑफ इक्विटीज. इट मीन्स आप कभी भी बगैर किसी ब्रोकर के कोई भी खरीदारी नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में, ना ही कुछ बेच सकते हैं. सो इसके लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है. उसके अलावा इन्वेस्टमेंट सर्विसेज हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग है. आप खुद भी ब्रोकर को भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और ऑनलाइन भी खुद ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अपना. एक अच्छे ब्रोकरेज हाउस के क्या फीचर्स होते हैं, दीज आर गिवन बिलो. स्टेट ऑफ द आर्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है उनका. मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल एडवाइजरी एंड कस्टमर सर्विसेज डेस्क होता है. दे हैव people who can help you to invest your amounts, how, where, when to invest. These people are having better knowledge than anyone else. Then there is design portfolio and investment cherries of our valuable clients. चेरीज का इधर मतलब स्टॉक्स हैं, डिफरेंट स्टॉक्स की जो आप लोग बंडल्स बनाते हैं, उनके लिए ये आपको आपका पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं. उसके अलावा रियल टाइम SMS सर्विसेज होती हैं कि आपने जब भी ट्रेड की आपको एक SMS आएगा कि आपने ये ट्रेड कर ली है, जैसे आपकी आम बैंकिंग ट्रांजैक्शन के SMS होते हैं उसी तरह से इसका होता है. सो इट्स नॉट लाइक, यूजुअली लोग ये सोचते हैं शायद कोई ब्रोकर है ये भाग जाएगा, इसका कुछ हो जाएगा. हाँ, पास्ट में ये होता रहा है, लेकिन अब ये सर्विसेज बड़ी सिक्योर्ड है. दे आर हाईली रेगुलेटेड और काफ़ी ज़्यादा बेटर कंट्रोल्स हैं इनके ऊपर. हाँ, आपने जो बाइंग और सेलिंग डिसीजन लेना है वो आप अपने नॉलेज पे लें.
आप खुद को पहले इतना इक्विप करें, और ये चैनल बनाने का और इन सारी चीज़ों का मकसद भी यही था कि आप लोगों को इक्विप किया जाए कि आप लोग खुद से ऐसी चीज़ें जो है वो आपके पास हों, आपके पास ऐसे टूल्स हों कि आप खुद अपनी बाइंग और सेलिंग कर सकें। सो कभी भी ब्रोकर के सहारे 100% ना रहें, क्योंकि दे आर वर्किंग विद सम डिफरेंट मेंटालिटी, यू आर वर्किंग विद सम डिफरेंट मेंटालिटी। सो आप अपने अपनी इन्वेस्टमेंट को जितना अच्छा खुद मैनेज कर सकते हैं, ब्रोकर नहीं मैनेज कर सकता। ऑल्दो दे आर एक्सपीरियंस्ड, बट उनका कुछ और एस्पेक्ट होता है बिजनेस को मैनेज करने का। दे हैव टू पुट सम वॉल्यूम एज वेल। सो आपको एक चीज बता दूं, वो कोशिश करेंगे कि आप वॉल्यूम में बिजनेस करें, क्योंकि जितना ज्यादा वॉल्यूम लगेगा उनका कमीशन उतना ज्यादा बनेगा। सो इट्स अ टिप कि आप जब भी काम करें अपने हिसाब से काम करें, ब्रोकर के हिसाब से काम ना करें। समटाइम्स होता है कि ब्रोकर की टिप बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको आप जरूर देखें। वो जैसे वो आम है तो थोड़ा लाइटर नोट कि रिश्ता कराने वाले भी कहते हैं ना कि आपको दिखा दिया है लेकिन तहकीक आपने खुद करनी है। ऐसे ही ब्रोकर आपको एक सिक्योरिटी का या किसी शेयर के बारे में बताता तो है, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें, उसकी बुक्स को पढ़ें, उसके फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं, उसका फ्यूचर क्या कह रहा है, वो क्या बना रहा है, ये सारी चीज़ें ज़रूर देखें। उसके अलावा अपकमिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज उसके हवाले से क्या कह रही हैं, ये बड़ी लिमिटेड सी चीज़ें होती हैं, इनको स्टडी कर लें तो आपका काम बन सकता है। ब्रोकर्स आपकी किन ट्रेड्स में हेल्प कर सकते हैं, कि कौन सी ट्रेडिंग सर्विसेज आपको दे सकते हैं? दे कैन बाय स्टॉक्स फॉर यू, दे कैन बाय एंड सेल स्टॉक्स फॉर यू, दे कैन बाय एंड सेल पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, पीआईबीज जिनको कहा जाता है। उसके अलावा दे कैन डू ट्रेजरी बिल्स फॉर यू एज वेल, दे कैन बाय एंड सेल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, they can buy and sell certificates of investments, then letter of placements, purchase orders. They can also do these things. So these are the products a broker can buy and sell for you as well. The corporate finance services given by a broker are given below. Security based फाइनेंसिंग जिनको TFCs कहा जाता है, वो आपको ब्रोकर करवा सकता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करवा सकते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पे हम एक सेपरेट व्लॉग बनाएंगे, इस पर पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि आप किस तरह से अपनी कंपनी को पब्लिक कर सकते हैं, और इससे एक ह्यूज अमाउंट आप लोग अपने लिए ले सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। उसके अलावा सिंडिकेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, प्रोजेक्ट एडवाइजरी है, लोकल एंड इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स ऑफ शेयर्स है, अंडर राइटिंग सर्विसेज है, क्रेडिट रेटिंग एडवाइजरी है, मर्जर एंड एक्विजिशंस हैं, डेट रिस्ट्रक्चरिंग है। ये सारी चीज़ें, इन अदर वर्ड्स हम इसको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी कहते हैं, ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस में हो रही हैं। एक कराची स्टॉक एक्सचेंज का पहले का एक सिस्टम होता था, उसको काइट्स कहा जाता था। अभी जो ज़्यादातर ब्रोकर्स के पास सिस्टम है जो वो क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, वो वी ट्रेड का सिस्टम है, विच इज़ वेरी सिंपल सिस्टम। इसमें आपको ट्रेडिंग करने में कोई मुश्किल नहीं है, आप खुद भी इस पर अपनी ट्रेडिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें ये जो पार्ट है वो वो है आपका कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन का, और जो ये वाली स्क्रीन है ये आपकी मोबाइल स्क्रीन है। तो आपके पास मोबाइल में और कंप्यूटर में, मोबाइल में फ़िलहाल एंड्रॉयड में ये फैसिलिटी है, एप्पल में आई गेस अभी तक नहीं है। सो इन फ्यूचर में भी आईफोन में ये फैसिलिटी आ जाए, लेकिन अभी एंड्रॉयड में ये फैसिलिटी मौजूद है कि थ्रू वी ट्रेड आप मोबाइल से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और अपने सिस्टम से, किसी पीसी से या लैपटॉप से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो ये प्लेटफॉर्म भी आपको ब्रोकर्स ही प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आगे एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल एडवाइजरी एंड कस्टमर सर्विस जो है, उसका भी यही काम है कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि दे आर हेल्पिंग यू टू सक्सीड। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको यही कहूँगा कि ब्रोकर की टिप्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उनके बावजूद आप उस पर खुद रिसर्च करें और अपनी रिसर्च के हिसाब से काम करें। Presentation. In upcoming vlogs, we will talk about practical aspects of stock market. We will talk about macroeconomic players. We will give some practical demonstrations of portfolio management,
how to choose a portfolio. Uh, so we will discuss about these all aspects in upcoming vlogs, and somehow we will go to somewhere, like we will meet some business leaders as well. We will provide some better references about how to invest and where to invest. So these all things will be the part of upcoming vlogs. So please be subscribed, subscribe our channel and press the bell button to be updated with our upcoming videos. Thank you.